Hello students, good morning. This is your new chapter for PT2 syllabus. I will send you PT2 syllabus, your tomorrow video based class, and you have to note down your PT2 syllabus because after that you will not, if you don't note down the your syllabus, you will forget. आप भूल जाते हो फिर मुझे बार बार परेशान करते हो. So you have to note down in your notebook. आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है. क्लियर है? And this is your first chapter for your PT2 syllabus from geography. Power resources. This is power resources chapter. Non-mineral resources is cut down. Mineral resources मैंने cut कर दिया है because CBSE cut down your 30% syllabus. So this is your power resources first chapter from geography. And now you know that we need energy or power to run machines, light our homes, and use different means of transport. As well as we are using mobiles, laptop. So all are need energy, power through which they started. And the resources which are used to generate this power or energy non-power resources. जिनसे ये आपकी energy आप get करते हो, these are called power resources. Power resources can be categorized, but जो आपके power resources हैं वो भी two category में categorized हैं, two category में divide हैं. And this is the category of power resources. Sources of energy, conventional sources and non-conventional sources. Conventional में आपके commercial and non-commercial में divide है. Coal, petroleum, electricity आपके commercial में आते हैं. Firewood, straw, dried dung ये आपके non-commercial में आते हैं. Non-conventional में bioenergy है, solar energy है, wind energy है, tidal energy है, energy from urban waste है. So these are in non-conventional. Now the question, which are the conventional sources? What do you mean by the conventional sources? So first we will discuss about it. What are conventional sources? Conventional sources means energy that has been used from ancient times is known as conventional energy. जो हम ancient time से use करते आ रहे हैं without technology. Without technology as we get from the nature we used it. हम उन्हें use करते हैं. Coal है आपका, natural gas है, oil है, firewood है, are examples और conventional energy sources. Petroleum भी आता है इसमें. So these are the conventional source of energy. ये आपके conventional source of energy है. इसमें first of all आपका आता है conventional sources में first आपका आता है coal. This is the coal energy. We get coal from the mining through the mining activities, and this is used for the furnace in the industries and other places also at the production of energy. Coal energy, you can see it is the heap of coal which we get from the mines through mining activities. जो mine से निकालते हैं वो coal आपका ऐसा होता है. And the question how this formed, कि जो आपका coal है वो बनता कैसे है? Because it is also called fossil fuel. Coal को हम fossil fuel भी कहते हैं. Because it is the most abundant found fossil fuel. It is used to run machines, steam engine, ships. Mostly जो आपका energy house है वो क्या है? आपका coal है. And you know, now the question, how coal was formed? You can see in this picture that before the dinosaurs, many giant plants died in swamp. कि आपके जो बड़े बड़े ट्रीज थे, कुछ एनिमल्स भी थे, वो आपके क्या हो गए? डाई हो गए, स्वैम्प हो गए, पानी के अंदर डूब गए. और ये आपकी फिशेस हैं. ये फिशेस इस टाइप से वो वाटर के अंदर स्वैम्प हो गई हैं. ये आपके प्लांट्स हैं, ये वाटर के अंदर और आपके सोयल के अंदर दब गए. आफ्टर द 1000 of years, 1000 of years, this converted in कोल. ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कोल में हो जाते हैं. ऐसा नहीं कि आपने आज आप कोई प्लांट्स को, किसी एनिमल्स को नीचे दबाओगे तो वो कोल में कन्वर्ट हो जाएगा. इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ये कोल में कन्वर्ट होते हैं. एंड यू नो दैट डायमंड ऑल्सो फ्रॉम द कोल. कोल से डायमंड भी बनता है, सेडिमेंट से कोल बनता है और कोल से डायमंड भी बनता है. बट दीज आर द नेचुरल प्रोसेसेस. ये नेचुरल प्रोसेस हैं ड्यू टू द वेदरिंग, ड्यू टू द टेम्परेचर.
उसके अकॉर्डिंग ये कन्वर्ट होते हैं। ये नहीं कि आप इसको अपने आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट ये इस टाइप से इतना इजीली, बिकॉज इसमें 1000 to 10,000 ईयर्स लगते हैं, और इतने ईयर्स तो आप लाइव नहीं करोगे कि आप उस चीज को देख सकते हो। नेक्स्ट, फॉसिल फ्यूल्स मीन्स कि फॉसिल फ्यूल से क्रूड ऑयल भी निकलता है, नॉट ओनली कोयल, क्रूड ऑयल, जिससे कि आपका ऑयल्स फॉर्म्ड होते हैं, तो उससे ऑयल्स भी निकलता है। एंड नाउ दीज आर द कार्बन कंटेंट और एनर्जी कंटेंट ऑफ कोल, बिकॉज जो आपका कोल है वो भी 4 वेराइटीज में हमें गेट होता है, लाइक पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रेसाइट। और इनमें से आपका आउट ऑफ दीज द बेस्ट वेराइटी ऑफ कोल इज एंथ्रेसाइट। इसमें से जो आपका एंथ्रेसाइट है वो सबसे बेस्ट में काउंट होता है। ये आपका एंथ्रेसाइट है, ये इसमें वाटर का कंटेंट दिखाया है कि उनमें वाटर कितना होता है, इसमें 1% वाटर होता है, बिटुमिनस पे 52% यूज इन बॉयलर कॉकिंग कोल, और ये हार्ड कोल में कन्वर्ट क्लासीफाई होते हैं। जो कोल है वो भी आपका 2 कैटेगरी में डिवाइड है, ब्राउन कोल, हार्ड कोल। ब्राउन कोल में कौन सा आता है, लिग्नाइट है, सब बिटुमिनस है, और हार्ड कोल में आपका बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, ये आपके हार्ड कोल में आते हैं। एंड एंथ्रेसाइट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी में काउंट होता है। इन इंडिया द मेन कोल माइनिंग एरियाज आर झरिया, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो एंड रानीगंज। और ऑल ओवर वर्ल्ड में यूएसए है, रशिया है, इंडिया है, साउथ अमेरिका है, कनाडा है, ये सारे जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं कोल के, इसमें आते हैं। नेक्स्ट आपका है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज अ फॉसिल फ्यूल ऑल्सो। पेट्रोलियम किससे, ये भी फॉसिल फ्यूल से गेट होता है। अभी मैंने आपको एक पिक्चर भी शो की थी कि उससे ऑयल भी निकालते हैं, विच इज ट्रैपेड इन लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक लिक्विड। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। इज द जनरल टर्म गिवन टू हाइड्रोकार्बन मिक्सचर्स फाउंड इन नेचर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। पेट्रोलियम ऑकर्स इधर इन गैसियस फॉर्म कॉल्ड नेचुरल गैस। जो पेट्रोल की गैसियस फॉर्म है वो क्या है, नेचुरल गैस है। गैसियस फॉर्म कॉल्ड नेचुरल गैस, लिक्विड फॉर्म क्रूड ऑयल, एंड सॉलिड फॉर्म कॉल्ड बिटुमिन और पिच। सॉलिड फॉर्म बिटुमिन मीन्स कोल, जो आपके फॉसिल फ्यूल के ही ये वैरायटी हैं। गैसियस फॉर्म है फॉसिल फ्यूल की तो वो नेचुरल गैस है, लिक्विड है तो वो क्रूड ऑयल है, और आपका सॉलिड में है तो वो बिटुमिनस है। दीज ऑल आर फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल। सो फॉसिल फ्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर conventional source of energy. Petroleum in India produced at Bombay High, Digboi in Assam, and in the delta of Krishna, Godavari. In the world, Saudi Arab, Kuwait, Iran, Iraq, UAE, Qatar, etc. इनमें ये फाउंड होता है। Then next आपका नेचुरल गैस, एज आई टोल्ड यू, फॉसिल फ्यूल से सॉलिड में सबसे पहले आपका कोल आया, लिक्विड में पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल से, और उसके बाद आपका आता है नेचुरल गैस जो आपकी गैसियस फॉर्म है। क्लीनेस्ट बर्निंग फॉसिल फ्यूल फाउंड विद ऑयल एंड इन कोल माइंस। कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। अ मेलोडोर्मेंट इज एडेड टू मेक इट इजियर टू डिटेक्ट लीक्स। एंड नेचुरल गैस यूज्ड एज अ ट्रांसपोर्ट फ्यूल। नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट फ्यूल सीएनजी में यूज करते हैं। नेचुरल गैस को डोमेस्टिक फ्यूल, जो एलपीजी, जो आपके घर में सिलेंडर आता है, जो गैस का सिलेंडर आता है वो एलपीजी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इंडिया में कहाँ कहाँ फाउंड होता है, त्रिपुरा, असम, गुजरात हैव नेचुरल गैस रिजर्व्स। एंड नेक्स्ट फायरवुड, यू वेल नोन अबाउट इट, कि जो आपको वुड वगैरह को बर्न करके जो हम हीट प्रोड्यूस करते हैं, इट इज अ फायरवुड। एंड यू नो इन इंडिया फायरवुड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इन द अनचेंट टाइम्स ऑल्सो, कि दैट टाइम कोल पेट्रोलियम के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, बट फायरवुड की नॉलेज तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट हुई है। डिस्कवरी ऑफ फायर फ्रॉम द इन द अर्ली ह्यूमन्स टाइम। सो इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो इन इंडिया। इट इज वाइडली यूज फॉर कुकिंग, हीटिंग। कुकिंग में भी यूज होता है, यू नो इन विलेजेस एरियाज में जो काव के डंग्स वगैरह होते हैं और आपकी वुड्स होती है, उनसे खाना भी बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर पावर। जो वाटर पावर यूज होती है उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है।
जो आपकी सो मैनी यूजेस में यूज होती है. हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इज एन रिन्यूएबल एनर्जी दैट यूज ऑफ द पावर ऑफ द मूविंग वाटर टू टर्न्स द टर्बाइन ऑफ द जनरेटर एंड प्रोड्यूस एनर्जी. टर्बाइंस लगाए जाते हैं, रिवर्स के ऊपर डैम बनाए जाते हैं, जिनसे जो फॉल के शेप में उसको वाटर को फॉल किया जाता है, जिससे कि टर्बाइंस में वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसको कलेक्ट किया जाता है और उसके साथ ही वो एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ डैम. डैम की पिक्चर आप देख सकते हो. इट इज इन हिली एरियाज. डैम भाखड़ा नांगल डैम, and these found and in India the major hydel power stations are Damodar Valley Project, Bhakra Nangal Dam, Nagarjun Sagar and Gandhi Sagar. ये आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेटर सिस्टम्स है. कि इंडिया में भाखड़ा नांगल डैम जो आपका सबसे हाईएस्ट डैम में काउंट होता है, ये उसी की पिक्चर मैं आपको शो कर रही हूँ. भाखड़ा नांगल डैम, उसके आफ्टर दैट आपके दामोदर वैली प्रोजेक्ट भी है, नागार्जुन सागर डैम भी है, गांधी सागर है, रिहंद आपका डैम है. तो ये आपके इंडिया में इतने सारे डैम्स हैं जिससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. वाटर इज स्टोर्ड इन डैम्स एंड मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट ओवर अ टर्बाइन प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए डैम. जो इसकी बॉटम है, यहाँ पर टर्बाइन लगाए जाते हैं. ये बॉटम है, यहाँ पर टर्बाइन लगाए जाते हैं. तो जैसे ही वो वाटर ऊपर से फॉल होता है तो उसके ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है. सो टुडे इज एनफ. अभी मैंने आपको हाफ चैप्टर की वीडियो दी है, बट यू हैव टू रीड योर चैप्टर. विद दिस वीडियो यू हैव टू रीड योर चैप्टर. आई विल गिव यू एक्सरसाइज वर्क, नॉट ओनली फ्रॉम योर बुक, ऑल्सो एक्स्ट्रा exercise work you have to fill that. Okay, so read your chapter, note down your syllabus in your notebook and try to understand the meaning of this chapter, and if you facing any problem then call to me. I will help you. Okay, so today is enough and you can bye beta.